سلطان محمد فاتح کی کہانی ایک ایسی پیشگوئی سے شروع ہوتی ہے جس نے 800 سال تک مسلم حکمرانوں کے دلوں میں ایک آگ دہکائے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور وہ امیر کیا ہی خوب امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا ہی خوب لشکر ہوگا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک مذہبی فریضہ اور ایک ایسی عالمی تقدیر تھی جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ ہر عثمانی سلطان نے اس خواب کو آنکھوں میں بسایا، لیکن تقدیر نے اسے ایک خاص نوجوان کے لیے بچا رکھا تھا۔ 1432 میں پیدا ہونے والے محمد ثانی اپنے بچپن ہی سے اس شہر کے سحر میں مبتلا تھے۔ وہ صرف ایک شہزادے نہیں بلکہ ایک جنونی طالب علم تھے، جنہوں نے 10 سال کی عمر سے ہی قسطنطنیہ کے دفاعی نقشوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ وہ 6 زبانوں میں مہارت رکھتے تھے اور فلسفہ، ریاضی اور عسکری سائنس کے ماہر تھے۔ ان کی عقل ان کی عمر سے کہیں زیادہ پختہ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے صرف جذبہ نہیں بلکہ علم اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ 1451 میں جب وہ صرف 19 سال کے تھے، وہ دوسری اور آخری بار عثمانی تخت پر بیٹھے۔ ان کے پہلے الفاظ نے تاریخ کی سمت بدل دی: میں قسطنطنیہ فتح کروں گا۔ ان کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جس نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو لرزا دیا۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ زمین کا وہ مرکز تھا جہاں یورپ اور ایشیا ملتے تھے۔ باسفورس کی لہریں 2 براعظموں کے درمیان تجارت اور طاقت کی کنجی تھیں۔ جس کا قبضہ اس شہر پر تھا، اس کا قبضہ دنیا کی شاہراہوں پر تھا۔ لیکن اس شہر کا دفاع دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی: تھیوڈوشین دیواریں، 1100 سال پرانی، 3 تہوں پر مشتمل، 12 میٹر بلند اور 5 میٹر چوڑی۔ یہ دیواریں اب تک کبھی بھی ناقابل شکست ثابت ہوئی تھیں۔ بوزنطینیہ سلطنت، جو کبھی دنیا کی عظیم ترین مسیحی طاقت تھی، اب صرف اس ایک شہر تک سمٹ چکی تھی۔ اس کے 50,000 باشندے ایک ایسے شہر میں رہ رہے تھے جو کبھی 10 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک مرتی ہوئی تہذیب تھی، لیکن اس کی دیواریں اب بھی مضبوط تھیں۔ آخری شہنشاہ قسطنطین یازدہم اپنی سلطنت کے سورج کو ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ طوفان آ رہا ہے، اور ان کی امیدیں صرف دیواروں اور مغربی یورپ سے ملنے والے خالی وعدوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک تنہا بادشاہ تھے جن کے پاس بچانے کے لیے صرف یادیں باقی تھیں۔ 800 سالوں میں 7 بار مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن ہر بار یہ دیواریں فتح کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ 717 کے عظیم محاصرے کی یادیں اب بھی تاریخ کا حصہ تھیں، جہاں عظیم جرنیل بھی ناکام لوٹے تھے۔ محمد فاتح کے لیے یہ دیواریں رکاوٹ نہیں بلکہ ان کی تقدیر کا حصہ تھیں۔ مغربی یورپ نے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے صرف دکھاوے کے وعدے کیے۔ پوپ اور دیگر مسیحی بادشاہوں کے پاس اس مرتے ہوئے شہر کے لیے کوئی حقیقی مدد نہیں تھی۔ قسطنطنیہ آہستہ آہستہ تنہائی اور بھوک کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ عثمانی طوفان تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ سلطان نے 2 سال تک انتہائی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی۔ 1452 میں انہوں نے صرف 4 ماہ میں باسفورس کے کنارے رومیلی حصار نامی قلعہ تعمیر کر دیا، جس نے قسطنطنیہ کی بحرہ اسود سے رسد کا راستہ مکمل طور پر کاٹ دیا۔ بازنطینی شہنشاہ کے احتجاج کو سلطان نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تب تاریخ میں ایک اور اہم کردار داخل ہوا: ہنگری کا انجینئر اربن۔ وہ پہلے قسطنطنیہ گیا تھا، لیکن وہاں فنڈز کی کمی کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا گیا۔ جب وہ سلطان محمد کے پاس پہنچا تو سلطان نے اسے وہ سب کچھ دیا جو اس نے مانگا تھا، اور اس سے بھی زیادہ۔ اربن نے ایک ایسی توپ بنانے کا وعدہ کیا جو بابل کی دیواروں کو بھی پاش پاش کر سکے۔ ایڈرن کی بھٹیوں میں کونسی پگھلائی گئی اور دنیا کی سب سے بڑی توپ دی گریٹ بمبارڈر تیار کی گئی۔ یہ 8 میٹر لمبی تھی اور اس کے ایک گولے کا وزن 500 کلو گرام تھا۔ جب اس کا پہلا تجربہ کیا گیا تو اس کی آواز 15 کلومیٹر دور تک سنی گئی اور زمین کانپ اٹھی۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ معجزہ تھا جو صدیوں پرانی دیواروں کا مقدر بننے والا تھا۔ اس ڈویکل توپ کو قسطنطنیہ تک لانے کے لیے 60 بیلوں اور 400 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ یہ ایک افسانوی منظر تھا، جیسے کوئی دیتا جنگ کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سلطان کی فوج کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی بھی کوچ کر رہی تھی، جو قرون وسطیٰ کے خاتمے کی گھنٹی تھی۔ سلطان نے صرف خشکی پر نہیں بلکہ سمندر پر بھی اپنی گرفت مضبوط کی۔ 120 سے زائد بحری جہازوں کا بیڑا تیار کیا گیا تاکہ باسفورس اور گولڈن ہارن پر قبضہ کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ کو اب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ شہر کے اندر خوف کا سما تھا اور باہر عثمانی جنگی طبلوں کی گونج قریب آ رہی تھی۔ اپریل 1453 میں تقریباً 1 لاکھ کا لشکر قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا عسکری اجتماع تھا۔ جب افق پر عثمانی خیمے نظر آنے لگے اور فوج کی دھول نے آسمان کو چھپا لیا تو دیواروں پر کھڑے بازنطینی سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ محاصرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح اپنے گھوڑے پر سوار خاموشی سے ان دیواروں کو دیکھ رہے تھے جن کا خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن ان کے ذہن میں فتح کا وہ نقشہ تھا جو دنیا کو حیران کرنے والا تھا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ تاریخ میں اپنا نام رقم کرنے کا لمحہ تھا۔ 6 اپریل 1453 کو پہلی بار اربن کی عظیم توپ نے آگ اگلی۔ جب پتھر کا گولہ تھیوڈوشین دیواروں سے ٹکرایا
तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट गया हो। जमीन लरज उठी और सदियों पुरानी फसील में दरारें पड़ने लगी। दुनिया ने पहली बार बारूद की वो ताकत देखी जिसने किलों की अहमियत खत्म कर दी। बाज़नतीनी दिफा करने वालों ने कमाल बहादुरी और होशियारी दिखाई। वो गोलियों के असर को कम करने के लिए दीवारों पर ऊन और चमड़े के थैले लटका देते और रात की तारीकी में मशअलों की रोशनी में दीवारों की मुरम्मत करते। हफ्तों तक वो इस नामुमकिन दबाव का सामना करते रहे और उस्मानी फौज को हैरान कर दिया। लेकिन एक बड़ी रुकावट अब भी बाकी थी। गोल्डन हारन के दहाने पर लगी वो अजीम लोहे की जंजीर जिसने उस्मानी बहरी बेड़े को रोक रखा था। हफ्तों तक सुल्तान की बहरिया उस जंजीर को तोड़ने में नाकाम रही और शहर का बहरी मुहासरा नामुकम्मल रहा। ये मुहासरे का सबसे बड़ा बहरान था। तब सुल्तान मोहम्मद ने वो किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात उन्होंने 70 बहरी जहाज़ों को खुशकी पर से ग्लाटा की पहाड़ियों के ऊपर से गुजारकर गोल्डन हारन में उतारने का हुक्म दिया। लकड़ी के तख्तों पर चर्बी लगाकर जहाज़ों को मीलों दूर घसीटा गया। ये अस्करी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना और हैरान कुन इक़दाम था। जब सुबह हुई और बाज़नतीनी सिपाहियों ने देखा कि उस्मानी बहरी बेड़ा उनके अक़ब में गोल्डन हारन के अंदर पहुंच चुका है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। शहर अब चारों तरफ से घेर लिया गया था। नफ्सियाती तौर पर बाज़नतीनी टूट चुके थे और उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका बचना नामुमकिन है। सुल्तान ने शहंशाह को आखिरी पैगाम भेजा, शहर हवाले कर दो और सबकी जानें बख्श दी जाएंगी। लेकिन कुस्तंतीन ने जवाब दिया, शहर आपके हवाले करना मेरे या यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स के बस में नहीं है। हम सब ने अपनी मर्जी से मरने का फैसला कर लिया है। अब फैसला मैदान जंग में होना था। 28 मई की रात उस्मानी कैंप में एक अजीब खामोशी और रूहानियत थी। सुल्तान ने पूरी फौज को दुआ और जिक्र का हुक्म दिया। लाखों आवाजें मिलकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रही थीं और उनकी आवाजें कुस्तुनतुनिया की फसीलों के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। ये फतह से पहले की वो रूहानी तैयारी थी जिसने सिपाहियों के हौसले बुलंद कर दिए। इधर शहर के अंदर अया सूफिया में आखिरी बार मसीही इबादत हो रही थी। बाज़नतीनी, लातीनी, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे आज मिलकर रो रहे थे और दुआ कर रहे थे। वो जानते थे कि ये उनके 1000 साला दौर का आखिरी दिन है। अया सूफिया का गुंबद उनकी सिसकियों से गूंज रहा था। 29 मई रात 1:30 बजे हतमी हमले का आगाज हुआ। पहले दस्तों ने दिफाई सिपाहियों को थका दिया और फिर सुल्तान ने अपने बेहतरीन दस्तों जान निसारों को आगे भेजा। ये वो वक्त था जब जमीन और आसमान जंग की आवाजों से भर गए। हर तरफ आग, धुआं और चीखें थीं और तारीख अपनी सांसें रोके खड़ी थी। अचानक एक छोटा दरवाजा कुरकोपोटा खुला रह गया, या शायद उसे जबरदस्ती खोल दिया गया। उस्मानी सिपाही सैलाब की तरह अंदर दाखिल होने लगे। दीवारों पर यह नारा गूंज उठा, शहर फतह हो गया। बाज़नतीनी दिफा मुकम्मल तौर पर बिखर गया और उस्मानी परचम फसीलों पर लहराने लगे। 1000 साला दीवार बिल आखिर हार गई। शहंशाह कुस्तंतीन याज़दहुम ने जब देखा कि सब खत्म हो चुका है तो उन्होंने अपने शाही निशानात उतार फेंके और एक आम सिपाही की तरह लड़ते हुए जान दे दी। उनकी लाश बाद में सिर्फ उनके शाही जूतों से पहचानी गई। वो एक कैदी बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक लड़ते हुए सिपाही के तौर पर तारीख का हिस्सा बन गए। बाज़नतीनी सल्तनत का आखिरी चिराग बुझ चुका था। दोपहर के वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने सफेद घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार 800 सालों से किया जा रहा था। शहर की गलियों में धूल और खामोशी थी और सुल्तान का इस्तकबाल उनके सिपाहियों की अकीदत भरी नजरों ने किया। वो अब सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल-फातेह बन चुके थे। दरवाजे पर पहुंचकर सुल्तान अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने जमीन से मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपने सर पर डाल लिया। यह अल्लाह के हुजूर उनकी आजिज़ी का एतराफ़ था कि यह फतह उनकी अपनी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से अता करदा थी। एक फातेह के तौर पर उनका यह पहला इक़दाम उनके किरदार की बुलंदी का सबूत था। वो अय्या सूफिया की तरफ बढ़े। ये उस वक्त दुनिया की अजीम तरीन इमारत थी। जब वो उसके अजीम गुंबद के नीचे खड़े हुए तो उन्होंने खामोशी से दीवारों और छतों को देखा। उन्होंने हुक्म दिया कि उसकी इमारतों और ख़जानों की हिफाजत की जाए। उनकी नज़र में यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि एक नई सल्तनत का रूहानी मरकज़ बनने वाली थी। और फिर अया सूफिया की दीवारों के अंदर पहली बार आज़ान की गूंज सुनाई दी। ये एक तारीखी लम्हा था। एक तहजीब का सूरज ग़ुरूब हुआ और एक नई इस्लामी सल्तनत का तुलू हुआ। आज़ान की वो आवाज़ न सिर्फ शहर में बल्कि पूरी दुनिया में एक नए दौर के आगाज़ का ऐलान थी। अया सूफिया अब एक मस्जिद बन चुकी थी। सुल्तान ने कुस्तंतुनिया को इस्तंबुल बना दिया। उन्होंने एक मुर्ती हुए शहर को दोबारा जिंदगी बख्शी। सड़कें, बाजार, मसाजिद और मदारिस तामीर किए गए। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को यहाँ लाकर आबाद किया ताकि ये दुआनबारा दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती और सकाफती मरकज़ बन सके। उनका विजन सिर्फ तबाही नहीं बल्कि तामीर नौ था। उनकी सबसे बड़ी सिफत उनकी मजहबी रवादारी थी। उन्होंने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च को बरकरार रखा और नए पेट्रियार्क का खुद तकर्रुर किया। उन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और यहूदियों को, जिन्हें यूरोप से निकाला जा रहा था, इस्तांबुल में पनाह दी।
उनकी सल्तनत में हर मजहब के लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने की आज़ादी थी। ये एक हकीकी आलमी सल्तनत का आगाज था। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक सच्चे रेनेसांस हुक्मरान थे। उन्होंने अतालवी मुसव्विर जेंटाइल बिलीनी से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, यूनानी और लातीनी मखतूतात जमा किए और अपने दरबार में बाज़ंतीनी और यूरोपीय उलमा के साथ फ़लसफ़े पर बहस की। उनकी शख्सियत इल्म और ताकत का एक नायाब इम्तिजाज थी, जिसने उन्हें अपने दौर का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह बनाया। कुस्तंतनिया के बाद उनकी मुहिम्मात ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने सर्बिया, क्रीमिया और अल्बानिया को फतह किया और उनकी फ़ौजें इटली के साहिलों तक जा पहुंची। कहा जाता है कि उनकी नज़र रोम पर थी और वो उसे भी उस्मानी पर चमतरे लाना चाहते थे। वो एक नाकाबिले शिकस्त फातेह थे, जिनके नाम से पूरे यूरोप के बादशाह लरसते थे। पाप पाइस दूम ने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी करार दिया था। उन्हें अल फातेह यानी फातेह का लक़ब दिया गया, एक ऐसा खिताब जो सिर्फ उनके लिए मखसूस हो गया। पूरी मुस्लिम दुनिया में उनकी फतह को एक मोजज़े के तौर पर देखा गया और उन्हें इस हदीस का मिस्दाक समझा गया जो सदियों पहले बयान की गई थी। उनका नाम अज़मत, जुर्रत और बसीरत का दूसरा नाम बन गया। वो एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख गए जो अगली 4 सदियों तक दुनिया की सुपर पावर रही। 3 मई 1481 को एक नई फौजी मुहिम के दौरान सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मौत की खबर ने पूरे उस्मानी लश्कर को सोग में डुबो दिया। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने कभी मैदान जंग में शिकस्त नहीं देखी थी और जिनका साया उनके सिपाहियों के लिए बायसे फख्र था। उनके जानिसार सिपाही जो उनके सामने कभी नहीं झुके थे, आज बच्चों की तरह रो रहे थे। उनके लिए सुल्तान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि उनका रूहानी पेशवा और भाई था। जब उनका जसद खाकी इस्तांबुल लाया गया तो पूरे शहर की फजा सिसकियों और आहों से भर गई। यूरोप के गर्जों में खुशी की घंटियां बजीं, लेकिन इस्तांबुल का हर घर मातम कदा बन गया। उन्हें इस्तांबुल की फातेह मस्जिद के सहन में दफन किया गया, वो मस्जिद जो उन्होंने खुद तामीर करवाई थी। उनका मज़ार आज भी लाखों लोगों के लिए अकीदत का मरकज़ है, जहाँ लोग उस अजीम इंसान को खिराज अकीदत पेश करने आते हैं जिसने एक ख्वाब को हकीकत में बदला। उनकी मिट्टी इसी शहर का हिस्सा बन गई, इसे उन्होंने अपना जुनून बनाया था। कुस्तंतनिया की फतह ने दुनिया की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने कुरून वुस्ता का खात्मा किया और जदीद दौर की बुनियाद रखी। बाज़ंतीनी उलमा जो इस्तांबुल से भागकर इटली पहुंचे, उन्होंने वहां रेनेसांस की आग को हवा दी, जिससे साइंस और आर्ट का एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। मोहम्मद फातेह ने नादानिस्ता तौर पर पूरी इंसानियत के इर्तिका में एक कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम खुशखबरी को पूरा कर दिया जो सदियों से मुसलमानों की उम्मीद थी। वो खूब अमीर और उनका लश्कर खूब लश्कर साबित हुआ। उनकी फतह ने यह साबित कर दिया कि जब ईमान, इल्म और अज़्म मिल जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार भी रास्ता देने पर मजबूर हो जाती है। उनकी जिंदगी हर उस शख्स के लिए मशअले राह है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ एक शहर के फातेह नहीं थे, बल्कि वो एक नई दुनिया के खालिक थे। वो तारीख के उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब इस्तांबुल के मीनारों से आज़ान की आवाज़ गूंजती है तो वो उनकी बसीरत और अज़्म की याद दिलाती है। वो एक ऐसा नाम है जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। वो सिर्फ एक शहर नहीं फतह कर गया, वो 1000 साल की दुआओं का जवाब बन गया। मोहम्मद उल फातेह, वो नाम जिसकी गूंज सदियों तक बाकी रहेगी, और वो ख्वाब जो अब भी हम सब की आंखों में बसता है। खुदा उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।